Good morning, students. In the previous video, I have told you all the kinds of sentences on the basis of its meaning. But today, we shall discuss about the parts of sentence. Parts of sentence means कोई वाक्य जब लिखा जाता है तो उसके दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट मतलब while starting a sentence, something is introduced first. While starting the sentence, something is introduced first. That particular person, that particular noun, pronoun or etc. is called our subject. For example, Ramesh is eating. Ramesh is eating. Here, Ramesh is eating. The word Ramesh is subject. So the word Ramesh is subject here. How can we say that it is subject? Because it is being introduced first. और जो प्रेडिकेट पार्ट है वो रमेश के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि रमेश कर क्या रहा है, रमेश क्या कर रहा है, वो इस पोर्शन में आपको बताया गया है। और मतलब इस प्रेडिकेट पार्ट में जो भी कुछ लिखा होगा वो सब्जेक्ट के बारे में ही होगा. इट विल बी एंटायरली अबाउट द सब्जेक्ट. सो द पर्सन, द थिंग दैट इज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इज कॉल्ड सेंटेंस. अब हम सब्जेक्ट. अब हम सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे सेंटेंस में? तो जब हमें पता लगाना हो तो हम हु या व्हाट करके हम क्वेश्चन करेंगे और तब हमें सब्जेक्ट का पता ऑटोमेटिकली लग जाएगा. जैसे रमेश इज ईटिंग, तो अगर हम हु करके हु इज ईटिंग, हु इज ईटिंग, तो आंसर क्या आएगा? रमेश. रमेश सब्जेक्ट हमें मिल गया. तो इस तरह से हम सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं. After knowing the definition of the subject, we must learn about the parts of subject. There are so many parts of a subject, and there are so many parts of the predicate also. But before knowing the parts of the predicate, we must learn the parts of the subject. So here I have written on the whiteboard so many. There are so many parts. There are so many separate words you can see written on the whiteboard. First, determiner. Determiner is a word that determines the noun or pronoun. And here adjective. Adjective is a word that describes the head word. That describes the head word. And adjective phrase. Adjective phrase is always kept, is always placed just after the head word. जो एडजेक्टिव फ्रेज हमारा होता है वो हमेशा हेड वर्ड के बाद में ही आता है. और जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव हमेशा आपका हेड वर्ड के पहले ही आएगा. क्यों? क्योंकि ये हेड वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. आई एम जस्ट गोइंग टू write an example, and on the basis of that example you have to learn. And if you have any problem after that, in the next video you can share it. You can share it in the WhatsApp group and I will give you the solution. I am just going to note down the example. This young boy
in the room is wise. This young boy in the room is wise. Here the word this is determiner. Here the word this is determiner. Why? How can we say that it is a determiner? Because it is determining, it is indicating the subject. The subject. Young is adjective. यंग इज एडजेक्टिव. वाई? कैसे कह सकते हैं एडजेक्टिव है? क्योंकि ये हेड वर्ड बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे. और बॉय हो गया हमारा हेड वर्ड, और इन द रूम ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. और इज वाइज, क्योंकि यहाँ से आपका प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है. प्रेडिकेट इसलिए स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपका वर्ब से लेकर के कॉम्प्लीमेंट तक जो हमारा पोर्शन होता है वो प्रेडिकेट पार्ट में आता है. तो भी प्रेडिकेट पार्ट को हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको हम ऐसे ही अभी इतना समझिए कि प्रेडिकेट पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से आपकी वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट. तो यहाँ पर हमने सीखा कि सब्जेक्ट के पार्ट्स को, कितने पार्ट्स हो सकते हैं? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, ये इतने पार्ट्स आपके सब्जेक्ट के हैं. Yes, there are some more parts of the subject. You can see on the whiteboard. Subject, its modifier or object, and after that predicate part is placed. There are some sentences you often see. Walking in the morning is good exercise. Walking in the morning is good exercise. Swimming in the river is dangerous. Yes, there are two sentences written on the whiteboard. Walking in the morning is good exercise. टहलना, here your sentence is starting with gerund. Here your sentence is starting with gerund, and gerund is formed with first form of the verb and ing. Gerund is, once again I am telling you that gerund is formed with the first form of the verb and ing. And in the both of the sentences you can see that there is walk, first form of the verb, and added with ing form. Here ing has been added in walk, and here in the second word you can see that in the swim the word ing has been added. So these both words are gerund. And और इसके अंत में जो मीनिंग निकलती है, वॉकिंग टहलना, स्विमिंग तैरना, अंत में नाम नी या ने वर्ड अक्षर आएगा, जीरन की यही पहचान है. तो तैरना इन द रिवर, नदी में तैरना, नदी में तैरना खतरनाक होता है. तो ये जो आपका ये सब्जेक्ट पार्ट है ये जीरंड है, और इन द रिवर ये मॉडिफायर है, ये मॉडिफाई करता है, मतलब तैरना किस चीज़ में या किस तरीके से, इस मतलब तैरने की जो आर्ट है, तैरने का जो तरीका है वो मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए मॉडिफायर हो गया. और बाकी ये पार्ट आपका प्रेडिकेट हो ही गया. तो पहले सेंटेंस में वॉकिंग इन द मॉर्निंग, टहलना तो ठीक है, लेकिन टहलना कब? इन द मॉर्निंग. टहलना कब? इन द मॉर्निंग. तो इन द मॉर्निंग यहाँ पर वॉकिंग के तरीके को यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है, इसलिए मॉडिफायर हो गया. इज गुड एक्सरसाइज, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो ही गया. यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा.
To err is human. To err is human. गलतियां करना मानव का स्वभाव है. यहाँ पर टू err गलती करना. To err, ERR is verb and error is noun. Here you have to pay attention to my instruction. Err is word and the word error is noun. Error is noun. Start. To err is human. गलतियां करना मानव का स्वभाव है. तो यहाँ पर जो टू err है ये आपका इन्फिनेटिव है. क्या है ये? इन्फिनेटिव. तो इन्फिनेटिव भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है. जैसे जीरंड हो सकता है, मतलब नॉन, ये जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट फॉर्म्स हैं. तो नॉन फाइनाइट भी ये जो है हमारे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं. यहाँ जीरंड का यूज़ मैंने आपको बताया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING से फॉर्मेशन इसका होता है. यहाँ पर टू err टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब हम इस तरह से फॉर्म करते हैं इन्फिनेटिव को, तो ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ हो सकता है. इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. टू err इज ह्यूमन. ऐसे ही to respect our elders is good habit. अपने बड़ों का सम्मान करना अच्छी आदत होती है. तो यहाँ पर देखिए टू प्लस वर्ब जो रिस्पेक्ट है इसकी फर्स्ट फॉर्म आई. तो यहाँ पर जो है ये आपका इन्फिनेटिव बना और सब्जेक्ट के रूप में है. तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको नॉर्मली जो है देखने को मिलते होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस. तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. हमने आपको पहले ही बताया जीरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ किए जा सकते हैं और यहाँ पर यूज़ किए भी गए हैं. इनका यूज़ मैंने आपको बता भी दिया है. और इसके बिहाफ पर जो एक्सरसाइज है आपके बुक में वो आपको करना है. और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आई विल एंटरटेन इट.